غیر قانونی بستیاں، فارم ہاؤس گرانے کی تیاریاں۔ تجاوزات کے خلاف کل سے گرینڈ آپریشن ہوگا۔ ملیر کی تحصیل گجاب کی مختلف دیہات میں غیر قانونی تعمیرات مسمار کی جائیں گی۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے 300 پولیس اہلکار اور رینجرز کی بھاری نفری طلب کر لی گئی۔ جی بالکل، اینٹی انکریچمنٹ فورس کے 200 اہلکار، 50 لیڈیز سرچر تعینات۔ ٹی ایم سی گڈاپ کو ڈمپر اور مشینری فراہم کرنے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنر گڈاپ آپریشن کی قیادت کریں گے۔ عدالتی احکامات کے بعد تجاوزات کے خلاف کارروائیاں بے سود۔ واٹر پمپ کے مارکیٹ کے اطراف سے تجاوزات کا صفایا نہ کیا جا سکا، جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری کا کہنا ہے کہ احکامات تو جاری کر دیے جاتے ہیں مگر عملی اقدامات نظر نہیں آتے۔ شہریوں کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، میں 61 سال میری ایج ہو گئی اور یہ سب کام تو میں اپنے ہوش سے دیکھتا آ رہا ہوں، بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہر وقت ہٹتا ہے، یہ ہر وقت لگتا ہے۔ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، جہاں بیٹھے ہیں تو ان کی بھی ظاہر بات ہے، وہ اتنا خرچہ کر کے اپنا ٹرانسفر کر کے وہاں پہنچے ہیں۔ اے سی صاحب ہوں یا ڈی سی صاحب ہوں، کوئی بھی صاحب ہوں، سب کا لگا ہوا کاروبار، سب کا اپنے اپنے کام دھندے لگے ہوئے ہیں، سب آتے ہیں اپنے اپنے لے کے جاتے ہیں، اپنے اپنے حصے کے پیسے لے کے جاتے ہیں۔ ابھی یہ کھڑے میں بیچارے رکشے والے، ابھی ٹریفک والا آئے گا، ان کو دھکا دے گا، بھگائے گا، روزگار کمانے کے لیے بھی مسئلہ ہے، یہ بھی ہے۔ اور ایک تو باہر سے آنے والے بھی افراد اب زیادہ ہو گئے ہیں یہاں پہ۔ میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی رمضان سب کے لیے رحمت کا مہینہ ہوتا ہے، یہ ذرا ڈی سی صاحب بھی خیال کریں، لوگ بھی خیال کریں۔ ایسا نہیں خالی کہ ساری ذمہ داری حکومت پہ ہے یا عام پبلک پہ ہے، لوگوں کے اوپر بھی ہے کہ لوگ میں بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھائی یہ چیز رستہ ہے، یہاں سے گزرنے کے لیے جگہ ہو تھوڑا۔ جہانگیر روڈ کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ہے، میئر کراچی نے سڑک کی تعمیر اور دیگر ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ 23 کروڑ کی لاگت سے بلدیہ عظمیٰ کراچی جہانگیر روڈ کی تعمیر اور نالوں کی بحالی کا کام کرے گی۔ ترقیاتی منصوبوں پر رواں سال 46 ارب خرچ کریں گے۔ آئندہ چند روز میں کراچی کے لیے ایک اور پیکج کا اعلان کروں گا، شعیب مختار کی یہ رپورٹ۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی ان ایکشن، جہانگیر روڈ کے مکینوں کی قسمت بدلنے کو تیار۔ میئر کراچی نے جہانگیر روڈ کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب بولے 60 روز میں ترقیاتی کام مکمل کرنے کی ہدایات دے دی ہیں۔ حسد کرنے والے حسد کرتے رہیں، ہم کام کرتے رہیں گے۔ جلد کراچی کے لیے ایک اور پیکج کا اعلان کروں گا۔ جہانگیر روڈ کے اوپر ہم کام سٹارٹ کریں گے اور آج 14 جنوری کو میں اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں کام کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے۔ یہ کام انشاءاللہ العزیز 230 ملین کی کاسٹ یعنی کہ 23 کروڑ روپے کی لاگت سے کے ایم سی ایگزیکیوٹ کرنے جا رہی ہے۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ سڑک کی تعمیر سے پہلے اس سڑک کی دونوں سائٹس پر ان دونوں کے نالوں کو ریوائیو کیا جائے گا، ریسٹور کیا جائے گا۔ واٹر کارپوریشن کے ساتھ سرکاری ہائیڈرنٹس بند کرنے سے متعلق سوال، میئر کراچی نے جواب دیا کہ تمام ہائیڈرنٹس کے لائسنس کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ واٹر کارپوریشن کی ٹیم کو منصفانہ پانی کی تقسیم کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت دی ہے، جسے کونسل اجلاس میں پیش کر کے منظوری لی جائے گی۔ اور ہم شہریوں کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر دیا۔ واٹر بورڈ حکام اب اس کے اوپر حکمت عملی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کیسے اس پانی کی منصفانہ تقسیم اور ترسیل کا نظام بنایا جا سکتا ہے۔ وہ جو پروپوزل ہوگا نا ان کا منصفانہ تقسیم کا، اس پروپوزل کو میں سٹی کاؤنسل میں لے کے جاؤں گا۔ میئر کراچی نے نیب کو ترقیاتی کاموں کے ریکارڈ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا، تحقیقاتی اداروں سے تعاون کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ انہوں نے کہا بجٹ بک میں ترقیاتی اسکیموں کے تمام ریکارڈ موجود ہوتے ہیں، ہماری ویب سائٹس پر بھی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ کیمرامین امجد علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ کراچی میں سڑکوں کی حالت بہتر نہیں بنائی جا سکی۔ حبیب چورنگی سے میٹروول جانے والا روڈ تباہ حال، نالا بنانے کے لیے کھدائی کی گئی، ملبہ وہیں پڑا ہے۔ جگہ جگہ گڑھوں نے شکایت شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ رمشا اسماعیل کی یہ رپورٹ۔
में सड़कों की खस्ताहाली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। कहीं गड्ढे तो कहीं मलबे के ढेर। ट्रैफिक की रवानी और मामूलात जिंदगी भी मुतासिर। हबीब चौरंगी से मेट्रोवेल जाने वाला रोड खस्ताहाली का शिकार। सड़क पर गड्ढे पड़ गए। नाले की तामीर के लिए खुदाई करने के बाद पड़े मलबे को हटाया ना जा सका। गाड़ियां हिचकोले खाती गुजरती दिखाई देती हैं। महीने से ज्यादा हो गए, 1.5 महीने तक ये नदी बना रही है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। 5-6 साल से इसी तरह है। इस कीचड़ की वजह से सारा रोड बंद होता है, सारा लोग परेशान है। शहरियों का कहना है कि सड़क अरसे से तबाहाल है। बड़े बड़े गड्ढे हादसात का सबब बनते हैं। सड़क से गुजरने के लिए जगह भी तंग हो गई है। मलबा 1 माह से उठाया ना जा सका। तकरीबन मेरा ख्याल 1 माह हो गया है। 1 माह से ये मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन ये है कि आगे सीवरेज का काम हो रहा है, आगे वायरिंग वगैरह जो बैठा रहे हैं उनका वो काम कर रहे हैं, और ये मलबा महीना हो गया है तकरीबन। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सड़क की फौरी मुरम्मत और मलबा उठाया जाए ताकि सड़क पर ट्रैफिक जाम ना हो। कैमरामैन शाजिब के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 20। लाइन लीकेजेस और सुई सदरन की जानिब से रोड कटिंग ने जिला वस्ती की 9 तामीरशुदा सड़कों को एक बार फिर तबाही से दो चार कर दिया। शाहराह औरंगजेब और रईस अहमद जाफरी रोड जो 20 बरस बाद तामीर हुई, पाबंदी के बावजूद खोद दी गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची में सड़कों की तामीर के बाद खुदाई की रिवायत बरकरार। नई सड़कें तबाह होने पर शहरी सीख पा हो गए। जिला वस्ती में सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट के तहत 9 तामीर शुदा सड़कें चंद ही अरसे में बर्बादी की तस्वीर बन गईं। शाहराह औरंगजेब और रईस अहमद जाफरी रोड जो आवाम के लिए एक बड़ी सहूलत समझी जा रही थी, लेकिन लीकेजेस और सुई सदरन की रोड कटिंग के बायस शदीद मुतासिर हो रही है। पाबंदी के बावजूद सड़कों को मुख्तलिफ मकामात से खोद दिया गया, जिसके नतीजे में पीपल्स चौरंगी समेत अतराफ के इलाकों में जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। पानी की लाइनों के रसाव से सड़कों का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। ये सड़कें तो अभी बनी थी, बना के जाते हैं, उसके बाद आते खोद देते हैं। जैसे कि देखें ये नाला 3 साल हो गए खोद के गए, बनाने का नाम ही नहीं है। यहाँ रोड टूटा हुआ है, पानी आ रहा है, यहाँ से पानी लीक हो रहा है, हज़ारों की कैन लीक हो रहे हैं। सही है, पूरा रोड दोबारा टूट गया। ये सुरंगी अभी बनी थी, दोबारा टूट गई, पानी निकल रहा है यहाँ पर। ये खड्डों से रोजाना बाइकें गिरती हैं। 20 साल बाद सड़क बनी थी, मगर चंद महीनों में दोबारा तोड़ दी गई। ट्रैफिक जैम रहता है और हादसात का खदशा हर वक्त मौजूद रहता है। शहरियों का कहना है कि नई सड़कों की बार बार खुदाई से न सिर्फ ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम हो चुका है, बल्कि मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वाले भी हादसात का शिकार हो रहे हैं। भाई ये तकरीबन 15-20 साल के बाद ये सड़क बनी है, और उसके बावजूद फिर ये अब इन्होंने दोबारा खुदाई की है। एक तो बनाते नहीं, दूसरा फिर खुदाई कर देते हैं, और दूसरा ये ट्रैफिक बहुत जाम चल रहा है यहाँ पर, और ये बराबर में स्कूल ही है, छोटे बच्चों का गुजर है यहाँ पर। 10 सालों बाद तो ये रोड बनी है, अल्लाह अल्लाह करके ये रोड बनी है, और उसके बाद जो है ना ये रोड जो है दोबारा से इसकी खुदाई शुरू हो गई है। ये इतनी मसरूफ शाहरा है, इसकी वजह से अभी रोज जो वो हादसा यहाँ पे होते रहते हैं। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि रोड कटिंग के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाई जाए और जिम्मेदारों को नई तामीर शुदा सड़कों को नुकसान पहुँचाने से रोका जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 20। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी के मरकजी सेक्रेटेरिएट के अक़ब में गुल प्लाजा से जुबली मार्केट के अहम तजारती मरकज का मास्टन रोड गुज़श्ता 1 बरस से सीवरेज मसाइल से दोचार है। कारोबार ठप हो गया है, जबकि हादसात और ट्रैफिक जैम रोज का मामूल है। रिजवान अहमद की सीवरेज का बोसीदा निज़ाम आवाम के लिए अजाब बन गया। जुबली क्लॉथ मार्केट का मरकजी तिजारती रास्ता गुज़िश्ता 1 साल से सीवरेज का नाकारा निज़ाम की भीड़ चढ़ा हुआ है। गुल प्लाजा से जुबली मार्केट तक फैला ये इलाका जिला जनूबी का मसरूफ तरीन तिजारती मरकज समझा जाता है, जहाँ रोजाना हजारों खरीदारों और गाड़ियों की आमदोरफ्त रहती है। सबसे बड़ी परेशानी पूरे अहले मोहल्लों को परेशानी है, कंप्लेनें कर चुके हैं। 1 साल से ये ऐसा है, मुझे तो लगता है कि यहाँ कश्तियाँ चलानी पड़ेगी, ऐसा वक्त आ जाएगा। मुसलसल उबलते सीवरेज के बायस सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। गंदा पानी जमा होने से जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जो मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए शदीद खतरा बन गए हैं। यहाँ पर लोग परेशान हैं पानी के वजह से, और बहुत से लोग ये कब से ज़्यादा पिछले रमज़ान भी था, 1 साल हो गए तकरीबन। ये जगह जो है साल के 12 महीने ऐसे ही रहता है, हफ्ते में 1 दिन सही हो जाता है, 10 दिन फिर ख़राब रहता है, रक्शे कल्टी हो जाते हैं,
बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। शहरियों का मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन फौरी नोटिस लेकर सीवरेज लाइनों की मरम्मत और सड़क की बहाली को यकीनी बनाएं ताकि कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो सके, अवाम को मजीद मुश्किलात से निजात मिल सके। रिजवान अहमद, सिटी। शहर काट में पार्क्स की अबतर सूरत हाल। औरंगी टाउन का खटक पार्क तबाही की दास्तान सुनाने लगा। पार्क के दरवाजे गायब, रिहायशी जानवर बांधने लगे, पार्क नशेइयों की आमाशगा बन गया। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। कायद में तफरीही पार्क्स में सहूलियात का फुकदान, पार्क तबाहाली का शिकार, 4 दीवारी और मरकजी दरवाजा गायब। औरंगी टाउन का मशहूर खटक पार्क जो किसी जमाने में तफरीह का मुकाम तस्वुर किया जाता था, अब तबाही की तस्वीर बन चुका है। इंतजामिया के मुसलसल नजरअंदाज किए जाने के बाइस पार्क ज़बोहाली का शिकार हो चुका है। इंतजामी गफलत का फायदा उठाते हुए नशेइयों ने अपनी अमाजगा बना लिया। अदम तवज्जोही का शिकार खटक पार्क की बाउंड्री वॉल खराब, जंगले और मरकजी गेट भी सलामत नहीं रहा। पार्क में हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पार्क में बच्चों के खेलने को झूले, रिहायशियों के बैठने के लिए बेंचेस भी मौजूद नहीं। पार्क से फूल पौधे खत्म, घास की जगह मट्टी ने ले ली। साथ ही तामीरात का मलबा भी पार्क में फेंका जाने लगा, जिसके बाइस बच्चे खेल कूद से महरूम होकर रह गए हैं। इलाके के रिहायशियों का कहना है कि सीवरेज का सिस्टम खराब होने की वजह से गंदा पानी पार्क के अंदर जमा रहता है। और ये पार्क ऐसा नहीं है, यहाँ पे पार्क बनाना चाहिए अच्छा करके। मैच की जगह भी नहीं है और खेलने के लिए भी जगह नहीं है, झूले भी नहीं है। झूले बनाना चाहिए इस पार्क में। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि पार्क में सफाई सुथराई का फौरी इंतजाम किया जाए ताकि औरंगी टाउन के खटक पार्क को इसकी असली सूरत में बहाल किया जा सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। कराची में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अस्मा बतूल की ज़ेर सदारत तिजारत ताजरों का इजलास हुआ। फैसले में कहा गया कि किसी को भी गैर कानूनी पार्किंग की इजाज़त नहीं है। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। के बगैर पार्किंग माफिया की बारी आ गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अस्मा बतूल की ताजरों के साथ मीटिंग। अस्मा बतूल का शहर के ताजरों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर आल कराची ताजर अलायंस आसिफ गुलफाम, फ़हीम नूरी, अल्ताफ़ लाला और दीगर ताजिर नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में गैर कानूनी पार्किंग के बढ़ते हुए मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। अस्मा बतूल ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी पार्किंग को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकारी इदारे इस सिलसिले में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। शाम को दोबारा से उसी तरह से वो गाड़ियाँ लगी होती हैं, बाइक्स लगी होती हैं, तो उसका अब एक जो सीरियस नोट पे क्रैकडाउन होगा। आपके अंडर आपके जितने भी आप शॉपिंग मॉल्स को, मार्केट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सख्ती से जितने भी ऐसे शॉपकीपर्स हैं उनको ये आप बावर करा दें, उनको ये नोट करवा दें कि अब सरकारी इदारे जो है वो इसमें हरकत में आएंगे और किसी किस्म की जो है वो लीनियंसी नहीं दी जाएगी। इजलास में ताजिरों ने भी गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ ताउन की यकीनदानी करवाई और दुकानों के बाहर बोर्ड्स लगाने पर इत्तफाक किया गया। सारा लीक जो है ना वो आपकी जो डिपार्टमेंट्स की है उनकी ईमा के ऊपर होता है। आप इंक्रोचमेंट करते हैं, आपको आने से पहले उनको पता होता है। पार्किंग अगर एक के आपका जो है वो मेयर साहब कहते हैं जी हमने ख़त्म कर दी है, डिस्ट्रिक्ट कहता है, टाउन कहता है कि जी हमने दी हुई है। किसी ने भी मॉल्स की पार्किंग में गोदाम या दुकानें बनाई हैं वो नहीं होनी चाहिए, उसको रिमूव किया जाए, वो इदारों का काम है। हम ताजिर बरादरी उनके साथ खड़े। ताजिरों और इंतजामिया ने मुतफ़िक़ा हिकमत अमली के तहत ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए मुश्तरका इक़दाम करने पर जोर दिया। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 20। लियाकताबाद के मकीन खुश, बरसों से टूटी फूटी सड़कों और गलियों का मसला आखिरकार हल होने लगा। ब्लॉक 7 में कई साल बाद तरक्याती कामों का आगाज, इलाका मकीनों के चेहरों पर खुशी लौट आई। वसीम इफ्तिखार के माज महबूब ने हमारे इलाके की तरफ तवज्जो दी। कई साल बाद ये सड़क बन रही है, हमें बहुत खुशी है। अब काम शुरू हुआ है तो उम्मीद पैदा हो गई है कि हमारा इलाका भी तरक्की करेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं MQM पाकिस्तान के MPA जनाब सिद्धे असेंबली रुकन माज महबूब भाई का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने लियाकताबाद के 7-8 नंबर को याद रखा। उन्होंने पूरी सड़कें बनवाई कोने की और ख़ास तौर से उन्होंने हमारी गली पर तवज्जो दी, गली का ख्याल करा उन्होंने, तो जिस वजह से आप देख सकते हैं कि गली तामीर है। बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों को हमने एप्लीकेशंस भी दी कि भाई हमारा ये काम कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चे गिर रहे हैं, सर फट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामला थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी सिवाय हमारे माज भाई के। लियाकताबाद ब्लॉक 7 में जारी तरक्याती काम न सिर्फ आवाम के दरीना मसाइल का हल है, बल्कि शहरी तरक्की की एक मुस्बत मिसाल भी। आवाम की उम्मीदें वाबस्ता है कि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच, इंसदाद दहशत गर्दी और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं।
पर सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से कैप्टिव टैरिफ का निफाज। आईनी बेंच ने कैप्टिव टैरिफ के खिलाफ इंडस्ट्रीज की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने सनतों पर कैप्टिव टैरिफ के इख्तलाक को गैर आईनी करार दे दिया। सुई सदर्न गैस कंपनी ने फरवरी 2025 में सनतों पर कैप्टिव टैरिफ आयद किया था। आईनी अदालतों से मुतालिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें। आईनी बेंच ने 4 हफ्तों में सिंध हुकूमत से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। पीका एक्ट में गिरफ्तार सहाफी असलम शाह की दरख्वास्त जमानत मंजूर। जुनूबी की अदालत ने असलम शाह को 30,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत कर दी। गुलशन फैजान सोसाइटी में मुंतखब यूनियन का नोटिफिकेशन जारी न करने का केस। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से जवाब तलब कर लिया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में सोसाइटी में रफाई प्लॉट कमर्शियल इस्तेमाल का केस। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक अदालती अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो डीजी एसबीसी को जाती हैसियत में तलब करेंगे। करप्शन, जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। अदालत ने साबिक चेयरमैन एसबीसी को 1 दिन का इस्तिस्ना दे दिया। आइंदा समाअत पर नेब के एतराज़ात पर दलाइल सुने जाएंगे। डीएचए में साफ पानी का दम फरामी का मामला। आईनी बेंच के केस की असर-ए-नौ समाअत का फैसला। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों और फरैकैन से 14 फरवरी को असर-ए-नौ दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने हुक्म इम्तिनान में तौसीह भी कर दी। पता न देने पर फैक्ट्री को आग लगाने का केस। एटीसी ने गिरफ्तार मुलजिम इकबाल अबरो और दीगर को 15 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। के सरमायाकार मोहतात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 1381 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,82,569 पॉइंट्स पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1381 पॉइंट्स गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार मंदी पर खत्म हुआ और मार्केट में नुमाया मनफी रुझान रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1381 पॉइंट्स की बड़ी कमी के बाद 1,82,569 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स एक मौके पर बुलंद तरीन सतह 1,84,726 तक गया, जबकि कम तरीन सतह 1,82,369 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में मनफी रुझान की वजह अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर यकीनी सूरत हाल है और सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग है, जिसके बाद सरमायाकारी का एतमाद मुतासिर हुआ और मार्केट दबाव में रही। जी देखिए, एक तो जियोपॉलिटिकल हालात जो हैं वो चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा लोगों में खौफ है। लेकिन जैसे ही मार्केट में लोगों को नफा मिल रहा है, मार्केट में माल बेच के अपना फिर से नीचे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से मार्केट ऊपर नीचे है। और ये भी अच्छा भी है कि मार्केट को उसी दिन जो आपको है जो नेगेटिव होता है वो मिल जाता है। इससे मतलब मार्केट का हुस्न नजर आता है। देखिए, आपने देखा साल के आगाज पे तकरीबन 10,000 पॉइंट बढ़े थे। इसके बाद आपने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग भी आई और साथ साथ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई, जिसकी वजह से मार्केट में इफेक्ट आया और अभी भी सिलसिला जारी है। जैसे ही अच्छी खबरें आएंगी, ईरान और यूएसए का टेंशन है, इसके साथ साथ यूक्रेन का है और दीगर ममालिक का जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, जैसे ही बेहतर होंगे तो मार्केट में दोबारा जो है बाइंग आ जाएगी। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 1,83,951 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 20। मुल्क में सोने की कीमत 5 लाख रुपए के करीब पहुंच गई, जबकि चांदी भी महंगी होकर फी तोला 10,000 रुपए के करीब जा पहुंची। सदर ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स हसीन कुरैशी के मुताबिक सोना आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है और मुतवस्सित तबका चांदी पर सोने का पानी चढ़वा रहा है। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच गई। सोना 5 लाख रुपए तोला के करीब पहुंचने से आम शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गया। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में भी तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है और फी तोला कीमत 1,000 रुपए के करीब पहुंच गई है। चांदी भी महंगी हो गई, लेकिन फिर भी सोने के मुकाबले में कम है। सदर ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स हसीन कुरैशी के मुताबिक सोने की बढ़ती हुई कीमत ने आवाम के लिए जेवरात खरीदना इंतहाई मुश्किल बना दिया है। यहाँ तक कि मुतवस्सित तबका अब चांदी पर सोने का पानी चढ़वा कर गुजारा करने पर मजबूर है। हमारी जो ज्वेलर्स की काउंटर सेल है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गई। जो लोग सोने के जेवरात अपने गिफ्ट आइटम में देते थे या अपने बेटियों को जहेज के तौर पे देते थे, तो वो अब मुतबादिल उनको चांदी का एक सिलसिला नजर आया है, तो वो चांदी के जेवरात बना के उनमें सोने का पानी चढ़ा के जो है वो अपनी बेटियों को जहेज में दे रहे हैं या किसी को अगर गिफ्ट करना है। सोने के कारीगर कहते हैं कि सोना महंगा होने के बाइस शहरी चांदी पर भी इन्हिसार कर रहे हैं। लोग सोना लेते नहीं है, चांदी के जेवरात लेते हैं, उस पर पॉलिश करवाते हैं, चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़वा के वही शादी ब्याहों में बेचारे पहना रहा है। क्योंकि एक अंगूठी भी लेने जाओ तो तकरीबन 75-70 हज़ार की है, वो उनके इससे बाहर हो जाती है लेने लेवाने की, इतना महंगा सोना है। सोने की महंगाई के बाइस ज्वेलर्स का कारोबार ना होने के बराबर रह गया है, जबकि खरीदारी में नुमाया कमी देखने में आ रही है।
پاکستان کا آٹو سیکٹر میں بڑی بحالی، شرح سود میں کمی، روپے کی قدر میں استحکام اور حکومتی اقدامات وجہ بنی۔ رواں مالی سال 6 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 46% کا بڑا اضافہ، گاڑیوں کی فروخت 46% بڑھ کر 88,322 یونٹس رہی۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ سیکٹر میں بڑی پیش رفت، رواں مالی سال 6 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 46% اضافہ۔ پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی رپورٹ جاری، 6 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت 46% سے بڑھ کر 88,322 یونٹس رہی۔ جیپ اور پک اپ کی فروخت 58% اضافے سے 22,412 یونٹس تک پہنچ گئی۔ ٹرکوں کی فروخت 106% اضافے سے 3,071 یونٹس رہی۔ بسوں کی فروخت 52% اضافے سے 461 یونٹس رہی۔ رپورٹ کے مطابق 6 ماہ میں موٹر سائیکلوں اور رکشوں کی فروخت بھی 33% اضافے سے 9,21,566 یونٹس تک پہنچی۔ آٹو سیکٹر ماہر مشہود خان کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار صنعت کے لیے بڑی بحالی کی عکاسی کرتے ہیں۔ روپے کی قدر میں استحکام اور ساتھ ہی شرح سود میں کمی بنیادی وجہ بنی۔ 2026 میں ہم امید کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے ایکشنز لیے ہیں یوز کار کی پالیسی کے اگینسٹ وہ بڑا سود مند ثابت ہوگا۔ دیکھیں اوورسیز میں ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، اوورسیز میں جو ہمارے لوگ ہیں، مگر جب کمرشل امپورٹ ہوگی اس سے آٹو انڈسٹریز میں جو وابستہ 25 لاکھ کے قریب اگر ہم دیکھتے ہیں ایس ایم ایز ہیں، ان کی جابس کریٹ ہوئی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور پاکستان کے پاس اتنا بڑا ریزرو نہیں ہے کہ ہم امپورٹ کر سکیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 6 ماہ میں ٹریکٹرز کی فروخت 26% کمی سے 12,929 یونٹس تک گر گئی۔ ماہرین کی رائے ہے کہ آٹو سیکٹر کی فروخت میں تسلسل جاری رہنے کی امید ہے۔ اشرف خان، City 21۔